Chief guests are here. Everybody is requested to stand up once and give a round of applause for our today's chief guest. We welcome you, sir, to the Mains International Conference. For the Mains International Conference, Namaskar. A very good and pleasant morning to one and all present here. It is a matter of immense pride to be here before all of you, expressing my deep gratitude for everyone who took time out from their busy schedules and are here for the Mains International Conference MIC 2025 on global convergence of law, media, commerce, IT and economics in the perspective of Viksit Bharat 2047. On behalf of Maharaja Agrasen Institute of Management Studies, I, Dr. Purnima Gupta, Associate Professor, Department of Law, Mains, And I, Dr. Shivangi, Assistant Professor, Department of Computer Applications, MAIMS, take the pleasure to welcome you all to MAIMS International Conference 2025. We are honored today to have amongst us our chief guest, Shri Priyank Kanungo, member, National Human Rights Commission. In absentia, our founder, chairman and chief advisor, Mains, Chancellor, Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, Baddi, Dr. Nand Kishore Garg, sir. Our chairman, Mains, Shri Vineet Kumar Loya, sir. And we also welcome Shri Rajneesh Gupta ji, Joint General Secretary, Mains. We also extend our gratitude to our esteemed trustees and other revered members of the management of the Maharaja Agrasen Technical Education Society, our director, ma'am, Professor Dr. Rajni Malhotra Dhingra, heads of all the departments, our faculty members, participants, our esteemed collaborators, sponsors, dear students present here today. Your unwavering support has been instrumental in bringing us this far. Let's proceed with the program and together take the blessings of Ma Saraswati, the goddess of learning and epitome of intelligence, consciousness, cosmic knowledge and strength. Let's begin this ceremony by offering our sincere prayers to the goddess Ma Saraswati. हस्ते स्फाटिकमा
I request Sri Rajneesh Gupta sir to kindly felicitate our chief guest Dr. Priyank Kanungo, member National Human Rights Commission, as a gratitude of respect. I request our Director, Ma'am Professor Dr. Rajni Malhotra Dhingra, to felicitate our panelist for the day, Mr. Vivek Srivastava. I request Manju Ma'am and Praveen Gupta sir to kindly felicitate Amna Mirza Ma'am, our esteemed panelist for today. We have amidst us Sri Lakshmi Narayan Bhalaji, also a distinguished cultural scholar. He is amidst us, and I will request Manoj Verma sir and Gaurav sir to kindly felicitate our guest for the day, Sri Lakshmi Narayan Bhala sir. I once again request our Director, Ma'am, Professor Dr. Rajni Malhotra Dhingra, to kindly felicitate Sri Rajneesh Gupta Sir, Joint General Secretary, Males. A big round of applause. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. A professor of SPM College, Delhi University. So we welcome you, ma'am, once again. Thank you so much for coming to the MAIMS International Conference 2025. We would now like to introduce Professor Dr. Rajni Malhotra Dhingra ma'am, Director MAIMS, who is not only a visionary but also a great motivation to all of us. A true leader and a constant source of inspiration, ma'am has continuously worked towards shaping the bright future of our institution. We request ma'am to deliver the welcome address with a warm round of applause. Good morning to Shri Priyank Kanungo, member of National Human Rights Commission of India, who readily accepted our invitation despite his busy schedule. I welcome you, sir. Warm welcome to our panelists, Mr. Vivek Srivastava, Dr. Amna Mirza, Shri Balaji for their kind presence. Warm greetings to Shri Rajneesh Gupta ji, Joint General Secretary of MAIMS, who always motivated us to achieve greater heights. Warm welcome to HODs of various departments, participants, faculty members, and my dear students. Dear all, in 1947, we have traced with destiny, and since then, we have tread a long way into a nation of free spirit, where head is held high and mind is without fear. Now, as India strides towards its vision of becoming a developed nation and stands at the crossroad of rapid technological advancement
economic growth, and legal reforms, unwavering dedication of all the Indians are required. I will quote few lines. सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. As we are discussing India Viksit Bharat in 2047, so we have to कदम मिलाकर सबको ही चलना रहेगा. So we as the education leader is committed to do our part and offering the critical minds to delve deep to find how India can harness the synergy between these fields to create a sustainable model that ensure inclusive and green growth. I would like to add that to become Viksit Bharat, we should not be satisfied with the little successes but aim to achieve more till our mission is achieved. हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न बुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं. So dear participants, let's seize this opportunity to learn, collaborate and ignite new ideas. Let us honor the responsibility we carry to shape not just our future but the future of generations to come. Once again, I welcome all of you to MIC 25. Let us learn together and do our bit for the mission of Viksit Bharat 2047. Jai Hind. Thank you so much, ma'am, for your motivating words. Now, I would like to call upon Dr. Sarita Bansal Garg, IQAC Coordinator and Head Department of Computer Applications, for giving introduction to the conference theme. Thank you, ma'am. A very good morning to all of you present here. First of all, I would like to acknowledge our chief guest, Shri Priyank Kanungo ji, Member, National Human Rights Commission, Shri Lakshmi Narayan Balaji, renowned social worker, Dr. Amna Mirza, Associate Professor, SPM College, Mr. Vivek Srivastav, Anchor, Bharat 24, Shri Rajneesh Gupta ji, Joint General Secretary, Professor Dr. Rajni Malhotra Dhingra, Director, Mains, my fellow HODs, researchers, faculty members, and dear students. It is with great pride and immense pleasure that I welcome you all to the Mains International Conference 2025, which is being held in hybrid mode today and tomorrow, that is 30th April, under the overarching theme, Global Convergence of Law, Media, Commerce, IT and Economics in the perspective of Viksit Bharat 2047. We are honored to host this gathering at Maharaja Agarsen Institute of Management Studies, an institution who is committed to fostering excellence in education, research and development. This year's conference is a testament to our collective commitment to exploring the synergies among law, media, commerce, IT and economic domains that are pivotal in shaping India's journey towards the vision of Viksit Bharat by 2047. As we stand at the transformative juncture in our nation's development, this conference is both timely and critical. The vision of Viksit Bharat 2047, a clarion call by our nation's leadership, it urges every stakeholder to align their efforts towards building a self-reliant, inclusive and globally competitive India. MIC 25 is our academic response to that vision, bringing together scholars, professionals and thought leaders to engage in deep dialogue, share research and explore innovative pathways. We are proud to announce that
A total of more than 80 research papers have been received from both national and international contributors. This impressive response reflects the global relevance and academic rigor of our conference theme. The diversity of submission promises rich discussion and innovative perspectives on how these interconnected sectors can collectively drive India's progress towards becoming a prosperous, equitable and globally influential nation. This conference includes panel discussion on navigating the road to Viksit Bharat 2047, the role of law, media, commerce and economics in nation building with very eminent panelists from corporate, academia and social work. We have total of 5 tracks with 1 offline session which will held today and 4 online parallel sessions which we are going to organize tomorrow. And each one, it symbolizes a critical pillar of India's growth trajectory. Offline technical session with the theme Converging Media, Law, Economics, IT, Management and Commerce for Viksit Bharat 2047 includes paper presentations addressing innovations in AI, cyber laws, green commerce, e-governance, and youth-driven change. Technical session 1, with the theme Gandhian Perspective in Viksit Bharat 2047, it discusses investigating social media's role in public awareness, digital literacy, and combating fake news. Similarly, technical session 2, with the theme Towards One World, One Law, Legal Integration and India's Role in Shaping Global Norms by Viksit Bharat 2047, it discusses and explores topics such as legal reforms, digital laws, cybersecurity, virtual courts, India's leadership in shaping global legal norms. Technical session 3, leveraging economics and IT for a Viksit Bharat. It explores e-commerce evolution, AI for sustainability, fintech innovation, and the global economic positioning in India. And last but not the least, innovative management and inclusive commerce, catalyzing Viksit Bharat 2047. It focuses on entrepreneurship, digital employment generation, fintech, and AI-driven HR solutions. So these 5 tracks, they are not silos. They are interconnected forces driving the Viksit Bharat vision. This conference aims to foster convergence intellectually and practically so that law strengthens policy, media amplifies development, commerce fuels the innovation, and IT ensures inclusion. We are grateful for the support of our sponsors, Gandhi Smriti and Darshan Samiti, and our academic partners including Kalindi College, University of Delhi, and UDF Central University of Brazil. Their collaborations has been instrumental in making this conference possible. I extend my heartfelt thanks to all the contributors, reviewers, organizing committee members and volunteers who have worked tirelessly to ensure the success of this event. Special appreciation goes to the authors whose research will be presented and discussed over the next 2 days, enriching our collective understanding and inspiring future collaborations. MIC 25, it is not just an academic event, it is a movement of minds committed to building pathways for a prosperous and sustainable India. Let us leverage this platform to engage deeply, think critically, collaborate purposefully, and inspire collectively. Together, let us explore the synergies between law, media, commerce, IT and economics, and lay strong intellectual foundations for the Viksit Bharat 2047. I extend my best wishes for enriching deliberations and meaningful outcomes over the next 2 days. May MIC 25 be a landmark event in shaping ideas that will lead India towards a bright, empowered future. Thank you and Jai Hind. Thank you so much, ma'am, for enlightening us with the conference introduction. Now, with great honor and pride, we introduce our chief guest for the event, Shri Priyank Kanungo, sir.
Sir is a distinguished member of the National Human Rights Commission of India, appointed in December 2024 by the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. Prior to this role, he served as the youngest chairperson of the National Commission for Protection of Child Rights, leading the commission for 2 consecutive terms from 2018 to 2024. Holding a BSc in microbiology, Sir has been instrumental in integrating technology into child rights monitoring. Under his leadership at NCPCR, several digital platforms were launched. We now... Sir, please take the stage. Thank you. नमस्कार। आज यहाँ इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मंच पर आसीन इस संस्थान के ट्रस्टी श्री रजनीश गर्ग साहब, यहाँ उपस्थित श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी, श्री विवेक श्रीवास्तव जी, श्री अमन मिर्जा जी, यहाँ उपस्थित इस संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर रजनी मल्होत्रा जी, और यहाँ उपस्थित लॉ डिपार्टमेंट के, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, लेक्चरर्स, भारत की ताकत का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रगण, मैं पिछले महीने एक विश्वविद्यालय में गया था हिमाचल में। आपका भी हिमाचल में विश्वविद्यालय आपने बताया, किसी और यूनिवर्सिटी में गया। वहाँ ये प्रोग्राम तो 1-1.25 घंटे में इनॉग्रल ख़त्म हो जाएगा, फिर अलग अलग सेशंस हैं, आप लोग कई सारी चीज़ें सुनेंगे। वहाँ जो उस दिन प्रोग्राम था वो 4.5-5 घंटे का, और ऐसे ही जो स्टूडेंट्स थे वो सामने बैठे हुए थे। जब मेरी संवाद करने की बारी आई तब तक 2-2.5 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे। मैंने उनके टीचर्स को धन्यवाद किया, उनके प्रोफेसर्स को धन्यवाद किया, और जानते हैं क्यों किया? और मैंने स्टूडेंट्स से ये विनती की कि अगर सामान्य रूप से छात्रों को अपने अध्यापकों के प्रति एक बार कृतज्ञ होना चाहिए, तो जेन जी को पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उनके प्रति जेन जी को 2 बार कृतज्ञ होना चाहिए। इसका कारण आप जानते हैं क्या है? आप ब्रह्मांड की इकलौती वो प्रजाति हैं जो पूरी तरीके से इंटरनेट में पैदा होके पले बढ़े। मैं सही कह रहा हूं? आपके पहले की जितनी जनरेशन्स हैं उन्होंने अपनी पिछली पीढ़ी से कुछ सीखा और बदले में पिछली पीढ़ी को कुछ इनोवेटिव बातें बताई। जैसे जब लैंडलाइन टेलीफोन से हम आगे बढ़े मोबाइल की तरफ, तो मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करना उन्होंने अपने जो पिछली जनरेशन थी उसको बताया। हम रेडियो से आगे बढ़े टीवी की तरफ, तो टेलीविज़न चलाना उन्होंने बताया। लेकिन ये जो इंटरनेट वाली जनरेशन है, इसके पास सब कुछ इतना नया है, और इसके पहले की जितनी पीढ़ियां हैं वो सब इसके सामने इस मामले में पिछड़ी हुई हैं कि इनकी दुनिया बहुत तेज़ी से बदलती है, बहुत तेज़ी से चेंज होती है। हम लोग जब तक किसी टेक्नोलॉजी की को सीखते थे उतने दिन में तो यहाँ टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो आपकी गति से गति मिलाना टीचर्स के लिए एक चैलेंज है। हम लोग जब पढ़ते थे, मैं जब विद्यार्थी था
20-22 साल पहले हमारा 45 मिनट का 50 मिनट का जो एक पीरियड होता था जिसमें हमको आके प्रोफेसर्स लेक्चरर्स पढ़ाते थे, हमारा पूरा फोकस इस पे होता था कि इस 45 मिनट में 60 बच्चों की इस क्लास में हम काश एक बार अपने टीचर का अटेंशन सीख कर लें, वो हमारी तरफ देख ले कि हम यहाँ मौजूद हैं। अब जो है ना कहानी उलट गई है। अब बेचारा हमारा जो प्रोफेसर टीचर पढ़ा रहा होता है वो 45-50 मिनट में ये सोचता है कि बच्चे काश मेरी तरफ एक बार अटेंशन कर लें, मैं जो बता रहा हूँ वो उन तक पहुँच जाए। तो हमको लेकिन इस जनरेशन के साथ चेंज होना है। इस जनरेशन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो विकसित भारत नहीं बनेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब विकसित भारत 2047 का मंत्र दिया तो उन्होंने ये सोच करके दिया कि विकसित भारत के लिए भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करने को जो पीढ़ी लेके जाएगी वो ये पीढ़ी नहीं है जो मंच पे बैठी हुई है, वो पीढ़ी है जो सामने बैठी हुई है। विकसित भारत 2047 केवल तब हो सकेगा जब आप लोग एक कमिटमेंट के साथ उसको आगे लेकर के जाएंगे। और जिस तरीके की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आज आपने ऑर्गेनाइज की है, मैं उनको जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, सर मत रोकिए। आपके बांधने से ये जनरेशन बंधेगी नहीं, इसको जाने दीजिए। ये स्वामी विवेकानंद के अनुयायी हैं। स्वामी जी ने कहा संभव की सीमा को जानने का केवल एक तरीका है, असंभव के आगे निकल जाना। तो उनको हर असंभव कार्य करने दीजिए कि वो अपने संभव की सीमा जान सके। और उसमें ये शामिल है कि वो अगर बाहर जाना चाहते हैं तो ये उनके संभव की सीमा है कि आप कितना रोक सकोगे उन्हें। खैर, तो प्रधानमंत्री जी ने जब ये मंत्र दिया तो ये सोच के दिया कि असंभव के पार जाने का काम वो जनरेशन करेगी जो आज स्कूलों में है, जो आज कॉलेजेस में है, जो आगे बढ़ेगी और देश को आगे लेके जाएगी और विकसित भारत का सपना साकार होगा। लेकिन विकसित भारत का सपना साकार होना, उसके लिए असंभव की वो सीमा क्या है, वो बेंचमार्क क्या है। एक बात तो हम लोग आज समझे कि आप लोगों ने इसको यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के बीच अगर विकसित भारत पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ग्लोबल कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से तय बात है कि आपके महाविद्यालयों के माध्यम से ये विषय जन आंदोलन बनने के लिए नीचे तक जा रहा है। ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक संदेश जा रहा है। लेकिन वो बेंचमार्क क्या है, वो असंभव की सीमा क्या है जिसके आगे ये संभव है, ये हमको तय करना होगा। आज दुनिया भर में अगर हम कानूनों की बात करें, मैं आपका विषय बहुत वृहद है, मैंने कल जब आपके प्रोफेसर्स मुझसे मिलने आए थे तब भी ये कहा कि इतना वृहद विषय है कि इस पे तो 2-3 दिन तक लगातार आप लोग कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। और एक मुख्य अतिथि के उद्बोधन में इतनी सारी बातें करना असंभव है। और मैं तो इकोनॉमिस्ट का विद्यार्थी भी नहीं हूँ, इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी नहीं हूँ। मैं आपसे आज बात करूँगा केवल कुछ कानून के विषयों पर और उन सामाजिक विषयों पे जिनके इर्द गिर्द मानव अधिकारों की दुनिया चलती है। और थोड़ी बहुत बात विवेक जी बैठे हैं, इनकी शान में गुस्ताखी किए बिना जितनी मीडिया की बात हो सकती होगी उतनी बात करेंगे। लेकिन जो असंभव की सीमा है उसको तो जांचना पड़ेगा कि हमें किसके आगे निकलना है। मेरा ऐसा मानना है कि जिन देशों को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला गया, जिन देशों को तीसरी दुनिया के देश बोला गया, उनमें भारत का स्थान हमेशा से एक प्रमुख रहा। जिसको ग्लोबल साउथ बोला गया उसका नेतृत्व भारत के पास नैसर्गिक रूप से आया। और इस दृष्टिकोण से जब हम असंभव की वो सीमा देखते हैं जिसमें विकसित भारत का सपना साकार होता है, वो सीमा है वर्ल्ड ऑर्डर का चेंज होना। जब हम एक ऐसे युग में जाएंगे जब वर्ल्ड ऑर्डर पूरा का पूरा परिवर्तित होगा तो वो विकसित भारत का सपना, विकसित भारत का जो हमारा मंतव्य है वो वहाँ जाके पूरा होता है। और इसमें बहुत सारे
अगर हम आज कानून के दृष्टिकोण से, कानून की पेचीदगियों के दृष्टिकोण से बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े हर्डल्स हैं। महात्मा गांधी ने ये लिखा कि जब यूरोप में हर आदमी अपनी जेब में पिस्तौल लेके चल रहा था, जब हर आदमी हथियार से इक्विप्ड होके चल रहा था, उस समय वहाँ के नीति नियंताओं ने ये तय किया कि भाई पिस्तौल के माध्यम से तो एक दूसरे को, हथियार के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से एक दूसरे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसको नियंत्रित करने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो वो तरीका मिला कानून। जन समुदायों को नियंत्रित करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई उसको कानून की व्यवस्था कहा गया। और जन समुदाय को कहां तक नियंत्रित करना है, कितना नियंत्रित करना है, किस संभव की सीमा के आगे नहीं जाने देना, ये आज की तारीख में बहुत सारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। मैं आज यहाँ जिस रूप में आमंत्रित किया गया हूँ वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के दायित्व पे काम करते हुए आप लोगों को लगा कि मैं यहाँ के कुछ बात बोल सकता हूँ, तो आपने मुझे बुलाया। तो बहुत सारे विधि के छात्र होंगे आप लोग, मैनेजमेंट स्टडीज में भी कई जगह आप लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ते, जानते, समझते होंगे। पूरी दुनिया में जो आज की तारीख में मानव अधिकारों की संकल्पना है, ये संकल्पना यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा अनेक सारे अलग 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 समय पे अलग अलग कारणों से दी गई और उसके बाद ग्लोबली उसको यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद 1993 का एक पेरिस समझौता हुआ और उसके बाद जाकर के पूरी दुनिया में ये नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन बने, जिसमें से एक भारत का मानवाधिकार आयोग है। आप में से कुछ मीडिया के स्टूडेंट्स होंगे, आप में से कुछ लोग ये पढ़ते सुनते रहे होंगे बीच में। मैं आपको एक बहुत बारीक बात बताने जा रहा हूँ जिसको आप समझेंगे तो यहाँ से साथ लेके जा पाएंगे। ये विकसित भारत बन रहा है, जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होगा भारत विकसित नहीं होगा। तो ये विकसित भारत बनने को हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। कंस्ट्रक्शन को रोकना, विकसित भारत के मार्ग में क्या अटकाना है, रोड़ा अटकाना है, तो उसको होने देंगे। ऐसा है कि जब ये तय हुआ कि पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इंस्टीट्यूट बनेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनेंगे, तो भारत में भी बना। उसके बाद ग्लोबली एक बॉडी बनाई गई, दुनिया के 110 मुल्क जिसके सदस्य हैं, उसका नाम है गनहरी, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। अब जहां कानून के कन्वर्जेंस की और कानूनी हर्डल्स की बात है, मैं वहां आपको बताऊंगा। ये ग्लोबली तय हुआ कि इन ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग की जाएगी, इनको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड में डाला जाएगा और इनमें जो कमेटीज बनेंगी वो इलेक्शन के थ्रू बनेंगी। अब इन 110 देशों में इलेक्शंस जो होते हैं, आज की तारीख में जो अभी तक इस गनहरी को चेयर करने वाली कंट्री है, चेयर करने वाली कंट्री का ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है, वो कतर है। भारत उसका मेंबर है। इलेक्शन की प्रक्रिया है, हमारे सामने 57 इस्लामिक कंट्रीज भी हैं जो उसके मेंबर्स हैं। इलेक्शन में कम तादाद वालों की आवाज सुनी जाना ये अपने आप में एक असंभव की सीमा है। अब असंभव बात इसमें दूसरी ये हो जाती है कि इलेक्टोरल प्रोसेस में आप जब किसी एक आइडियोलॉजी पे सबके साथ एक नहीं होते, तब आप माइनॉरिटी हो जाते हो वहाँ पे। और हमारी भारत की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उसकी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है, वो हमको वहाँ पे माइनॉरिटी में खड़ा कर देती है, जिससे हमारी आवाज़ पतली हो जाती है, हमारी आवाज़ की धमक कम हो जाती है। वहाँ पे जो पैरामीटर्स डिसाइड हुए किसी कंट्री की रैंकिंग करने के, किसी कंट्री की ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग करने के, उन पैरामीटर्स ने भारत को ये बोला कि भाई हम तुम्हारा एक्रेडिएशन तो जो टॉप कैटेगरी है उसमें नहीं करेंगे, तुम्हारा एक्रेडिएशन हम थोड़ा सा डाउन करेंगे,
क्यों करेंगे? क्योंकि तुम्हारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन करवाते हो तुम पुलिस से करवाते हो, तुम्हारे यहाँ जो लोगों को अपॉइंट करते हैं वो सरकार करती है, और ये कह के रिपोर्ट्स जो है मीडिया को दे दी जाती है। अब मीडिया में ये एक नैरेटिव चला जाता है, फिर मीडिया रिपोर्ट्स प्रकाशित करता है और परसेप्शन ये बिल्टअप किया जाता है कि भारत में ह्यूमन राइट्स की स्थिति इतनी खराब है कि भारत की ह्यूमन राइट्स बॉडी को बी कैटेगराइज कर दिया गया है। आप लोग अगर गूगल करके पढ़ोगे तो भी आपको मिल जाएगा 3-4 दिन पहले की भी खबर। अब मसला ये है कि ये जो कैटेगराइजेशन है वो भारत में मानव अधिकारों की स्थिति का नहीं है, क्योंकि जो कंट्री चेयर कर रही है वो कतर है। अब कतर और भारत का अगर हम कंपैरिजन देखें तो वो ये कहलाता है कि कतर में जो वहाँ का हेड ऑफ द नेशन होगा वो सुन्नी मुस्लिम ही होगा, बाय लॉ ये तय किया गया है। कतर में जो दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज से, भारत से या बांग्लादेश से जाने वाले माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो किसी भी धर्म के हों, वो अपने धर्म की सार्वजनिक रूप से पालना नहीं कर सकते। कतर में अगर कोई किसी को किसी दूसरे धर्म की, सुन्नी इस्लाम के अलावा किसी दूसरे धर्म की प्रीचिंग करेगा तो उसको सजा मिलेगी, और किसी ने किसी को कन्वर्ट कर लिया तो उसको सजाए मौत मिलेगी। ये वहाँ के कानून हैं और वो ए कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है। हमको लोग बोलते हैं कि तुम बी कैटेगरी में कैटेगराइज्ड हो। तो बात ये है कि जब परसेप्शन बिल्डअप करना होता है किसी के बारे में तो ये नहीं किया जाता कि आपकी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति उसमें कैसी अच्छी देखिए, हम पैरामीटर को वैसे ट्विक कर देंगे। तो दुनिया भर में पैरामीटर्स को ऐसे ट्विक करने का जो भ्रम जाल है, जो माया जाल है, उसको एक बहुत खूबसूरत जामा पहनाने का काम यूनाइटेड नेशन पिछले कई दिनों से करता आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, एक वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड कई बार चलता है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि जंगल में चुनाव नहीं होता, शेर अपनी ताकत से राजा होता है। सुना है, सोशल मीडिया पे घूमता रहता है ये वाला मैसेज। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस की एक एक्रीडिटेड बॉडी बन गई गनहरी, और इसके बाद ये सारा का सारा तामझाम बना। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पूरी दुनिया को पाठ सिखाने वाला जो मुल्क है वो अमेरिका है। अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर है, इसमें तो किसी को कोई इनकार नहीं है। इसमें इनकार रखेंगे तो फिर आगे इसकी बात नहीं बढ़ेगी। तो अमेरिका जो है इस सारे की सारी प्रक्रिया का भाग नहीं है। अमेरिका गनहरी का मेंबर नहीं है। अमेरिका में कोई नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग बात करते हैं, पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जिसका नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, यूनिसेफ का नाम सुना है? जैसे हम यूनिसेफ का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कुपोषित बच्चे, गरीब बच्चे, उनकी देखरेख करने वाला एक मदरली फिगर जो है वो यूनिसेफ है। तो ये परसेप्शन है जो उन्होंने आपके दिमाग में बना दिया, और इस परसेप्शन को बिल्डअप करने के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं। जबकि हकीकत ये है कि यूनिसेफ का जन्म हुआ था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जो एक ट्रीटी है, ग्लोबल ट्रीटी है, जिसपे इंडिया ने साइन किए है, उसको रेटिफाई किया है भारत में, उसको इम्प्लीमेंटेशन में मदद करने के लिए। और इन्होंने किया क्या? इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका ने यूएनसीआरसी की ट्रीटी को रेटिफाई करने से मना कर दिया, और आज तक कोई ताकत नहीं है जो उनसे कह सके कि करवा लो। हमारे यहाँ बहुत सारी बार ये होता है कि हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स, अगर हम इधर कॉमर्स की तरफ जाएंगे, इकोनॉमिक्स की तरफ बात करेंगे, आपकी इस कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिनको हमको कई बार एक्सपोर्ट करना होता है, उन पे ये सैंक्शन भी लगते हैं कि ये लेबर लॉज का वायलेशन है, और कई बार तो ये सैंक्शन लगते हैं कि इसमें चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व है, और इसके लिए बाकायदा बॉडीज बनी हुई हैं, कानून बने हुए हैं, ग्लोबल लॉज है जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं।
और बड़ी खुशी की बात है, हमको करना भी चाहिए। कई सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहां पे झूठी रिपोर्ट्स भी ऐसी बनाई गई और उसको क्रॉस चेक करने में पाया गया कि डेटा गलत था। लेकिन हम एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हम उनको मानेंगे। और इसके साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, जब इसको अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो पता चलता है कि अमेरिका में चाइल्ड की कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन ही नहीं है। इट वेरीज स्टेट टू स्टेट। किसी राज्य में उसे 16 साल में एडल्ट मान ले रहे हैं, किसी में 18 तक लेके जा रहे हैं। जब चाइल्ड की ही यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है, तो चाइल्ड लेबर के प्रिवेंशन के लॉज तो यूनिफॉर्म या फेडरल लेवल पे है ही नहीं। तो वहां पे 15-16 साल के बच्चों से काम भी कराते हैं। डिज्नीलैंड हम सबने सुना, डिज्नीलैंड के बारे में सुना? नहीं सुना? तो प्लीज एक बार एक सेशन डिज्नीलैंड के लिए सर इनका करवाइए। डिज्नीलैंड आप लोगों को जो भी मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं उनको डिज्नीलैंड के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, एज ए केस स्टडी पढ़ना चाहिए। और इसलिए पढ़ना चाहिए कि व्यापार को किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाता है। जब हम ग्लोबल कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, अमेरिका में किले नहीं थे, अमेरिका में महल नहीं थे। अमेरिका तो दुनिया भर के उन लोगों ने मिलकर के एक देश बनाया जिनको तरक्की करनी थी, जिनको आगे बढ़ना था, जिनको पैसे कमाने थे, जो लिबरल वैल्यूज में यकीनी तौर पे काम करना चाहते थे, जो लिबरल वैल्यूज में यकीन करते थे। तो वहाँ ये जिसको वो लोग बैगेज बोलते हैं वो उनके पास था नहीं। हमारे पास जिसको हम हेरिटेज बोलते हैं वो हमारे पास है। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि हमारे हेरिटेज की हम उतनी बेहतरीन पैकेजिंग और मार्केटिंग कर पाए जो हमारे पास हजारों साल से मौजूद था, जितना यूएस ने क्रिएट किया। आप सोचिए जरा, बच्चों को कार्टून फिल्म देखना है तो डिज्नी के बारे में जानना है। डिज्नीलैंड पूरी की पूरी एक दुनिया बनाई गई, पूरा का पूरा शहर फ्लोरिडा में एक ऐसा बसा दिया गया जहां दुनिया भर का पर्यटक जाता है। वो पूरा का पूरा शहर बनाया गया है केवल पर्यटन के लिए। तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ना चाहिए। हम बात कर रहे थे चाइल्ड लेबर की, तो जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पे दिन भर काम करते हैं, 7-7, 8-8 घंटे काम करते हैं और उनको अप्रेंटिसशिप के नाम पे, वॉलंटियरिज्म के नाम पे लगाया जाता है और खुल्ला ग्लोबल लॉज जो चाइल्ड लेबर के हैं उनका वायलेशन होता है, लेकिन कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि नैरेटिव उन्होंने जो बनाया है वो दूसरी तरफ का बनाया हुआ है। पूरी दुनिया के लोग वहां पे जाते हैं, लेकिन वो बच्चे उनको चाइल्ड लेबर के रूप में काम करते नहीं देखते। ये ताकत से जब अपनी आप बात को पेनिट्रेट कर पाते हो, उससे होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने WHO को लात मार के बाहर कर दिया। पूरी दुनिया में कहीं सुई गिरने की भी आवाज नहीं आई। तो जब हम ग्लोबल ऑर्डर में उसके आसपास पहुंचने की स्थिति में आएंगे, तब जाकर के हम विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ पाएंगे कि हम वो सारे कानून जो हमको किसी न किसी कारण से पीछे खींचते हैं उसको बाहर कर सके, ऐसी संस्थाओं को बाहर कर सके, उनसे बाहर आ सके। मैं मीडिया की दृष्टिकोण से एक बात आज आपको बताना चाहूँगा जो वक्ती तौर पे बताना बेहद ज़रूरी है, जिसका आज की तारीख में बात किए जाने का महत्व है। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बॉडी क्रिएट की वहाँ की फौज के भीतर। उसका नाम है ISPR। इसको गूगल करिएगा प्लीज। ISPR एक बॉडी बनाई उन्होंने, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन। 2 मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स उन्होंने उसके ऊपर बिठाए। इनफॉर्मल सोर्सेस से पता चलता है कि लगभग $13 मिलियन का वो उस पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और वो प्रोपेगेंडा फैलाने की उन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो 7th जनरेशन वॉरफेयर में अपनी एक्सपर्टीज रखती है। अब ये 7th जनरेशन वॉरफेयर क्या है, ये तो आप लोगों को पता होगा। दोस्तों, 7th जनरेशन वॉरफेयर का सबसे जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो रशिया और यूक्रेन का वॉर है।
रशिया और यूक्रेन के वॉर में कभी आपको पता ही नहीं चला कि एक्चुअल स्थिति क्या है। जिस दिन इनका सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा तेज चला रशिया वालों का, हमने मान लिया कि रशिया आगे बढ़ गया। जिस दिन यूक्रेन वालों का तेज चला, हमने मान लिया वो आगे बढ़ गया। लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जो सबसे एडवांस फॉर्मेट है वो ये 7th जनरेशन वॉरफेयर है, जो मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू आपकी भौगोलिक सीमाओं को टच किए बिना आपको मानसिक रूप से हराने के लिए काम करता है। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी अगर ये मान लेगी कि युद्ध से भला नहीं होगा, तो सामने वाला तो मॉरली वैसे ही जीत जाता है। ये काम इस 7th जनरेशन वॉरफेयर का है, जिसके लिए पाकिस्तान ने एक पूरी की पूरी विंग बनाई हुई है, जिसे मेजर जनरल लेवल के 2 ऑफिसर्स देखते हैं। आप लोगों के जानने योग्य इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी कलाकार जो बॉलीवुड में लोकप्रिय हो रहे हैं, जिनकी फिल्में देखने हम जाते हैं, जिनके म्यूजिक शोज हम सुन रहे हैं, वो इस ISPR से फंडेड है। तो किस प्रकार हमारी मन स्थिति को ट्विक किया जाए उस दिशा में कि हम पाकिस्तान को ये मानना छोड़ दें कि हमारा नुकसान करता है, ये काम ISPR का है। और वो बहुत डीपली पेनिट्रेट इसको करते हैं, अलग अलग तरीकों से करते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को आज की तारीख में जानना बेहद ज़रूरी है कि ये कैसे होता है आपको। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है दुनिया में। आप लोगों ने राज कपूर की फिल्म का वो गीत सुना होगा, मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी रूसी। तो जो सर पे लाल टोपी रूसी जब वो बोला करते थे, या उनकी फिल्मों में रशियन सर्कस को ला करके रशिया और इंडिया की एक दोस्ती बताई जाती थी, या टूवर्ड्स रशिया इंडियन पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस किया जाता था, उसके लिए रशिया में एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री थी, पूरा डिपार्टमेंट था, जिसके थ्रू यहाँ पे फिल्मों को भी फंड किया जाता था। एक आप लोगों ने वो तो सुना ही होगा, थोड़े दिन पहले अखबारों में बड़ी चर्चा थी उस विषय की। एक फिल्म आई थी, नहीं कॉमेडी तो नहीं थी दोस्त, सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म का नाम था। क्या वो तुम हो जो छुप के हंस रहे हो? सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म देखी किसी ने? आमिर खान की मूवी थी बॉस, वो चाइना में हिट हुई और उसका कभी भी मैंडरिन में, चाइना की भाषा में कोई डब्ड रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो चाइना में हिट हुई। उसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन जो है चाइना से। तो हमको डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि 7th जनरेशन वॉरफेयर में फिल्में, मीडिया, सोशल मीडिया हमको किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। एक दो बातें और आपके पास बताने को रह गई हैं। जब ये परसेप्शन बैटल में हम लोग चलते हैं और अलग अलग प्रकार के कानून, अलग अलग प्रकार के मीडिया फोर्स जो अल्टीमेटली फाइनेंशियल एक्टिविटीज को अफेक्ट करती हैं, तब होता ये है कि एक इंडियन आदमी को, जो इंडियन ओरिजिन का है पर इंडियन नहीं, उसको नोबेल मिला, जो इकोनॉमिस्ट था। कोई नाम बताएगा? अमर्त्य सेन। सर, अमर्त्य सेन को पूरी दुनिया में ये कह के प्रचारित किया गया कि वो गरीब के इकोनॉमिस्ट है। ऐसा ही क्या हो? अमर्त्य सेन की ससुराल ढूंढिएगा जरा गूगल करके। यहाँ बहुत सारे युवा ऐसे बैठे हैं कि उनको प्रेरणा मिलेगी कि ससुराल ऐसी भी ढूंढनी चाहिए कभी। दुनिया के सबसे पैसे वाले आदमी का दामाद है वो। जब आप डॉलर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फेडरल रिजर्व मिलेगा। फेडरल रिजर्व पे कंट्रोल, फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, जहाँ पे अमेरिका के जो डॉलर को नियंत्रित करता है, डॉलर पूरी दुनिया को नियंत्रित करता है, डॉलर को फेडरल रिजर्व नियंत्रित करता है। और फेडरल रिजर्व पे जिन लोगों का नियंत्रण है वो रोथस्चाइल्ड फैमिली है। उस रोथस्चाइल्ड फैमिली का दामाद अमर्त्य सेन है, जिनको पूरी दुनिया में गरीब का इकोनॉमिस्ट के रूप में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। कल जो है एक घटना हुई देश में, वो भी आपको जानना ज़रूरी है कि दुनिया में नैरेटिव वॉर किस तरीके से काम करती है।
मेरे ख्याल से रिपब्लिक ने अभी तक इस पर बात नहीं की है। विवेक जी, मैं आपको भी बता के जा रहा हूँ, आपका शो होगा आज, तो आपके लिए हो सकता है टिप हो जाए। कल भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन से एक ग्लोबल अलायंस ने आकर मुलाकात की। वो ग्लोबल अलायंस है प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल, दुनिया भर के वामपंथियों का एक समूह है जो ये बोलता है कि हम कैपिटलिज्म के खिलाफ है, पर एक्चुअली उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो एस्टेब्लिशमेंट्स के विरोध में काम करने की अराजक मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। उसकी जो एडवाइजर्स हैं उनमें से एक का नाम अरुंधति रॉय है। अरुंधति रॉय का नाम हमने सुना है? अरुंधति राय ने 2010 में इसी दिल्ली में एक स्टेटमेंट दिया था। उसने कहा था कश्मीर इज नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और उसके ऊपर बकायदा उसके ऊपर मुकदमा चलाने की मंजूरी अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल ने दी थी, गवर्नर ने दी थी। वो अरुंधति राय जिस ग्लोबल अलायंस की पार्ट है, पहलगाम के हमारे संप्रभुता पर हुए इस्लामिक टेरर अटैक के 8 दिन के भीतर वो लोग आकर हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन से मिल रहे हैं। ये बात देश के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए और देश के पत्रकारों को इस पर चर्चा करनी चाहिए। अगर हमको वाकई विकसित भारत 2047 की तरफ जाना है तो आज आपका एक सेशन है महात्मा गांधी के थॉट्स पर, महात्मा गांधी की इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पर। उन्होंने बहुत जो खादी के साथ किया, दुनिया में खादी जैसा कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई भी। उन्होंने चंपारण के अपने सत्याग्रह को सीधे सीधे इकोनॉमिक एक्टिविटी से जोड़ा। जिस दिन मैनेजमेंट की इकोनॉमिक्स के छात्र बैठकर उस पर एक सेशन चाहें तो गांधी स्मृति दर्शन समिति का उस पर बहुत डिटेल्ड काम है, बहुत डिटेल्ड काम है कि कैसे वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जिससे बाहर आने के लिए हमको रास्ता चाहिए था। गांधी जी ने केवल कपड़ा त्याग के सत्याग्रह नहीं किया, गांधी जी ने पूरा का पूरा इकोनॉमिक मूवमेंट खड़ा किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसको नील सत्याग्रह कहते हैं। अगर नील सत्याग्रह आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे केवल आज़ादी की भारत की लड़ाई नहीं थी, वो भारत की आर्थिक स्वतंत्रता की भी एक लड़ाई थी। तो ये हमारे इतिहास में, हमारी लड़ाइयों में, हमारे संघर्षों में जो कुछ है उसको सीख कर आगे बढ़ते हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम करते हैं वो रिमार्केबल होता है। आज की तारीख में खादी ने उन ऊंचाइयों को छुआ है। अगर हमको ग्लोबल टेक्सटाइल्स में लीड करना है तो खादी से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। जब पूरी दुनिया जीरो कार्बन की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल लॉज इस तरीके के आ रहे हैं कि हमको अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, टेक्सटाइल में खादी से अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। ये पहली बार ऐसा हुआ है भारत में कि 1,70,000 करोड़ का कारोबार खादी ने पार किया है। अगर हमको वाकई एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्सटाइल चाहिए तो वो खादी है। ज़रूरत है इसको इस तरीके से ग्लोबली प्रोजेक्ट करने की, जो ग्लोबल लॉज है उसमें हमारे प्रोडक्ट्स को इस तरीके से फिट करने की। थैंक यू सो मच। सर, हम हृदय से आपके आभारी हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों से अवगत कराया। आपका संबोधन न केवल ज्ञानवर्धक था बल्कि यहाँ पर उपस्थित हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक भी रहा। आपके विचारों ने इस कार्यक्रम को शुरुआत में ही सफल बना दिया। आपका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। Now we move to a very special moment of this conference, the release of the conference souvenir. The conference souvenir is a reflection of its journey, the spirit, and the intellectual contributions in the form of abstracts of participants that have shaped this event. I kindly request all the dignitaries to come forward for the formal release of the souvenir. I request all the HODs also to come on the stage, please, for the formal release of the souvenir of the International Conference, MEMS 2025.
The conference, Global Convergence of Law, Media, Commerce, IT and Economics in the Perspective of Viksit Bharat 2047. A huge round of applause for this big moment. Thank you so much, everyone. I now request Dr. Praveen Kumar Gupta, Sir, Head Department of Law, to kindly deliver the vote of thanks. नमस्कार। आदरणीय श्री प्रियांक कानूनगो आज के मुख्य अतिथि, मैं पूरे मेट संस्थान, फैकल्टी एवं स्टूडेंट्स की तरफ से उनका हृदय से आभारी हूँ और बहुत धन्यवादी हूँ कि आज उन्होंने जो ज्ञान की गंगा यहाँ बहाई है और ऐसे अनेक तथ्य, फैक्ट्स जो कि रूटीन में किसी भी विषय में शायद नहीं पढ़ाए जाते, वो हम सबके समक्ष रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इधर आने के लिए। मैं आदरणीय श्री रजनीश गुप्ता जी, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी मेट्स, उनका भी बहुत आभारी हूँ। यहाँ अपना कीमती समय निकाल कर आज सर आए, बहुत ही व्यस्त शेड्यूल था। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आभारी हूँ आदरणीय श्रीमती रजनी मल्होत्रा ढिंगड़ा मैडम, डायरेक्टर मेम्स, जिन्होंने इस पूरे कॉन्फ्रेंस के लिए समय समय पर हमें गाइडेंस दी और आज इस रूप में हम ये कॉन्फ्रेंस शुरू कर पाए। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू मैडम। और वोट ऑफ थैंक्स की इस क्रम में, क्योंकि हमारा एक पैनल डिस्कशन भी है, तो उन पैनलिस्ट श्री लक्ष्मी नारायण बालाजी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सेवा करते हुए, अविवाहित रहते हुए बचपन से शुरू किया और अनेकों साहित्यिक लेखन कार्य किया और संविधान के ऊपर जो उन्होंने किताबें लिखी हैं वो अद्भुत हैं, सभी को वो पढ़नी चाहिए। मैं उनका यहाँ आने पर बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके साथ ही श्री विवेक श्रीवास्तव जी, एक जाने माने पत्रकार, जो कि आज पैनल डिस्कशन के लिए यहाँ पधारे हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ। एवं मैडम आमना मिर्जा, एक हमारी एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज पैनल डिस्कशन में तीनों हमारे जो गेस्ट हैं अद्वितीय हैं और मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी विद्यार्थी एक बहुमूल्य पैनल डिस्कशन में भाग लेंगे, ऐसे ही धैर्य के साथ बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। So let's continue the program and let's have our panel discussion over here. So I thank all the dignitaries. I sincerely thank our chief guest for the day. Thank you so much, sir. Your speech was amazing. Thank you so much, sir. Thank you. To
Today's panel discussion is on navigating the road to Viksit Bharat 2047, the role of law, media, commerce and economics in nation building, with very eminent panelists from the corporate, academia and social work. So the students are requested not to leave. We still are having the panel discussion, beta. All are requested to please settle down. A distinguished face from the world of Indian journalism, Mr. Vivek Srivastava. Currently an anchor at Republic Bharat, Sir brings with him years of rich experience from the leading news organizations like Zee Hindustan, TV9 Bharatvarsh and ABP News. A postgraduate in journalism from the prestigious Banaras Hindu University, he has built his reputation as a credible journalist with a sharp command over news delivery and an engaging style of communication. Beyond the newsroom, Vivek's passion for poetry adds a beautiful creative dimension to his personality, which he often shares with his followers on social media. Hailing from the cultural city of Varanasi and now based in Delhi, he stands today as a powerful voice in the Indian media, informed, insightful, and inspiring. Let's welcome him also with a huge round of applause. Our next panelist, Dr. Amna Mirza, is an academician, author, social entrepreneur, and curator of ideas. She is a professor at SPM College, University of Delhi, and a former associate professor at the Sarojini Naidu Center for Women's Studies, Jamia Millia Islamia. She has completed her bachelor's degree from St. Stephen's College, a master's degree in political science from Hindu College, University of Delhi, and MPhil and PhD from the Department of Political Science, University of Delhi. She has published 10 books, has more than 25 research papers in reputed journals, has participated in more than 150 conferences at the national and international level for paper presentations, and as a resource person to deliver invited lectures, among others. She has patents awarded by the governments of Australia and India, supervised PhD candidates, pursued research projects, and contributed towards MOOCs, among others. She has also pursued additional coursework from Harvard X, amongst others. Her research areas include digital transformation, Industry 4.0, foreign affairs, digital society, international political economy globalization, and international relations. An avid traveler, voracious reader, and vegan, her academic initiatives have taken her to the University of Duisburg, Germany. I warmly welcome ma'am with a round of applause. Now I request the HOD of Journalism Department, Dr. Umesh Pathak sir, to take the panel discussion ahead. Thank you, Dr. Purnima. Before starting the panel discussion, I would like to assure to all the audience, all the students, that we have a very short duration of discussion. So please listen us carefully, and I'm starting with a quote which is all for you. कि जब चल पड़ोगे रास्ते आसान पाओगे, जब चल पड़ोगे रास्ते आसान पाओगे, फिर साथ अपने पक्ष में तूफान पाओगे, और जलयान जब तलक न समंदर में जाएगा, तब तक न समंदर की छटा जान पाओगे, और जीवन तो जद्दोजहद का पर्याय है, मगर भारत में हो तो जीने का अरमान पाओगे। विकसित भारत, जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि ने आज कहा, कि आप लोगों की बदौलत है, आप लोगों से है, और आप लोगों के साथ हमें ताल में ताल मिलाना है, क्योंकि ये जो बेचैनी का सबब है मोबाइल की पीढ़ी के साथ, उसके साथ चलना वास्तव में बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुबह उठ करके न हम भगवान देखते हैं, न इंसान देखते हैं, मोबाइल का टेक्स्ट देखते हैं। ऐसे दौर में इतने बड़े बड़े सपने केवल मोबाइल के व्हाट्सएप से नहीं पूरे होने।
आपको आग में तो जलना होगा, अभी जैसा उन्होंने अटल जी की कविता का इशारा किया, कदम बढ़ाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। मैं सीधे आज के दौर में बहुत तल्ख दौर से हम गुजर रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ पड़ोसी देश का मुद्दा चल रहा है और पड़ोसी देश के इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा आक्रामक तरीके से टेलीविज़न के लोग ही हमें बताते हैं। हमारे बगल में बैठे हुए विवेक जी आपके साथ एक जाना माना चेहरा है। मैं विवेक से सीधा सवाल पे आता हूँ कि विकसित भारत 2047 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है हमारे देश के विकसित होने की, उसमें आने वाले समय में जब तकनीकी बदलाव इतने सारे हो रहे हैं, मीडिया मोबाइल में हाथों तक सिमट चुका है, ऐसे दौर में क्या भूमिका हो सकती है और क्या प्रारूप बदलने वाला है मीडिया का? विवेक श्रीवास्तव जी। तो मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा नाम विवेक है और मेरा पेशा वो है जिससे सबको दिक्कत है। कानूनगो साहब जो आपके मुख्य अतिथि थे, मैंने उनको रोका कि मैंने कहा कि आप सुना के जा रहे हैं, सुन के नहीं जा रहे हैं। सरकार को इस बात से दिक्कत है कि मीडिया अपना काम नहीं कर रही है, मतलब जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी को इस बात से दिक्कत है कि हमारी आवाज बताई नहीं जा रही है। वो ये बात भी टीवी पर आके कहते हैं कि मीडिया वाले हमारी बात नहीं बता रहे हैं, और सरकार कह रही है कि नहीं ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उलूल जुलूल चीजें दिखाते हैं, एग्रेसिव चीजें दिखाते हैं। बहरहाल, दूसरी बात जो हमारा अभी आज का मुद्दा है, विकसित भारत 2047 कैसे पूरा होगा। सबके अपने अपने व्यूज हैं। जैसे वो ह्यूमन राइट्स वाले थे, वो अपने ह्यूमन राइट्स के विचार रखे गए हैं। सर सोशल वर्कर है, ये इनसे पूछेगा तो ये बताएंगे कि हाँ ये चीजें समाज में बदल जानी चाहिए, ऐसे बदलाव होगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश है। एक चीज से तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, बहुत सारी चीजें करनी हुई। किसी से पूछेगा तो वो कहेगा कि गरीब कल्याण कर दीजिए, देश विकसित हो जाएगा। किसी से पूछिए, वो कहेगा किसान का कल्याण करिए, देश विकसित हो जाएगा। कोई कहेगा कि जो महिलाएं हैं उसका सशक्तिकरण करिए तो देश जो है आपका हमारा विकसित हो जाएगा। कोई कहेगा कि शिक्षा दीजिए, कोई कहेगा कि मध्यम वर्ग जो मिडिल क्लास है सब जगह पिसते आया है उसका विकास कीजिए तो देश विकसित हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करने वाले स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा जो आजकल बड़ा मुद्दा चल रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लोग बात करेंगे कि नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उसको थोड़ा टाइट करिए और ठीक से काम करें तो देश विकसित हो जाएगा। और कुछ लोग कहेंगे, जो लोग व्यापारी है वो कहेंगे कि व्यापार विकसित करिए, जो लोग IT से आते हैं वो कहेंगे कि टेक्नोलॉजी विकसित करिए। तो जिस विभाग से जो आता है, जिस सेक्टर में जो काम करता है, वो इस बात पर जोर देगा कि आप ये करिए तो विकसित हो जाएगा। हमें पूछिए तो हम कहेंगे कि हमको और बोलने का मौका दीजिए, तो हम आपके देश का जो चौथा स्तंभ है उसको और मजबूत करेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देने से और मजबूत हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है, इस बात का सारांश यह है कि सबके अपने अपने व्यूज हैं। जिसके नजरिए से देखिएगा लगेगा कि भैया ये करो तो देश हमारा मजबूत होगा, लेकिन 140 करोड़ का देश जो है वो सिर्फ एक चीज करने से नहीं मजबूत होगा, सारी चीजों को करने से मजबूत होगा। उसमें सबसे अहम है कि अगर हम किसी शिक्षण संस्थान में बैठे हैं तो सबसे जरूरी है हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट। जो पढ़ाई चल रही है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में चल रही हो, चाहे लॉ वाली चल रही हो या जर्नलिज्म वाली चल रही हो या फिर किसी लिटरेचर की चल रही हो या हिस्ट्री की चल रही हो या सोशल वर्क की चल रही हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। आप सोचिए कि जब भारत हमारा हुआ करता था पहले, तो जो क्या कहते हैं उसको 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय था, तो खिलजी ने आके उसको उड़ाया, कितने दिनों तक वो किताबें जलती रही। मतलब हम पहले से धनी थे, लेकिन उसको अटैक करना था अगर कुछ खराब करने के लिए, तो हम सबसे पहले वो कहा गया हमारे शिक्षण संस्थानों पे। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट हैं, जो भविष्य है देश का, उनको मजबूत करिए, तब उनको विकसित करिए, तब आपका देश, हमारा देश 2047 तक जो 100 साल पूरे होने वाले हैं और जो उसका सपना है कि 2047 पूरा होगा, तो जो बच्चे हमारे विकसित हो जाएंगे तो हमारा देश विकसित हो जाएगा। क्योंकि आप अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट के है ना, अलग अलग सेक्टर्स में जाके काम करेंगे, तो आप जैसे हम एक इस हॉल में अगर बहुत सारे लोगों को विकसित करेंगे, वो अलग अलग जाके अलग अलग सेक्टर्स में काम करेंगे, तब हमारा देश जो है विकसित हो जाएगा। धन्यवाद विवेक। और हमारे साथ डॉक्टर आमना मिर्जा हैं और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर खासी नज़र रहती है इनकी। आमना जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि भारतीय मीडिया वैश्विक मंच पर, भारतीय मीडिया नहीं, वैश्विक मंच पर भारत की जो स्थिति वर्तमान में सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से, तो आने वाले दिनों में विकसित भारत के संदर्भ में किस रूप में ये दिखाई देगा और इस पर आपके क्या विचार हैं?
धन्यवाद आदरणीय उमेश जी। I'll be bilingual here, मैं दोनों भाषा में बात करूंगी, अंग्रेजी व हिंदी। क्या मेरे युवा साथी सब तैयार हैं? देखिए, इंडिया इज ग्लोबल पावर की बात हो रही है। बिना सॉफ्ट पावर जिसमें मानव संसाधन और युवा सबसे महत्वपूर्ण है, उनकी वाणी शामिल नहीं है तो बात नहीं बनेगी। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आर यू ऑल विद मी? धन्यवाद। परम आदरणीय उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें बुलाया। रिस्पेक्टेड एचओडीज, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इट्स ग्रेट टू बी हियर। नाउ व्हेन वी लुक एट द बिगर क्वेश्चन, द बिगर एस्पेक्ट ऑफ इंडिया एट द ग्लोबल लेवल, वैश्विक पटल पे जब मैं भारत को रेखांकित करने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पर जो जवाब है, जो उत्तर है, वो 3 भागों में होने वाला है उमेश जी। द आंसर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले लेट्स एक्सेप्ट इट दैट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड व्हिच इज बीइंग रीऑर्डर्ड एवरी डे। आज बड़ा सवाल ये है कि अब नया वैश्विक जो परिस्थिति है उसके साथ वैश्विक संरचना कौन होगा, क्योंकि वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू कोल्ड वॉर टू द प्रेजेंट टाइम वेयर डज द पावर सेंटर लाई, इट इज बीइंग रीऑर्डर्ड। सवाल उठा जा रहा है कि अब अगली विश्व शक्ति कौन होगा। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज एंड एक्सट्रीम कंपटीशन। आज प्रतिस्पर्धा के साथ साथ बहुत सारी जटिलताएं हैं, बट डू रिमेंबर कॉम्प्लेक्सिटीज प्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी फॉर मोर स्ट्रेंथ टू कम। जब भी जटिलता कोई होती है तो वो आगे बढ़ने की एक नींव भी होती है। एंड इन दैट एस्पेक्ट डू रिमेंबर द वर्ल्ड दैट वी ऑल are going to inherit is the world that you all will create. भविष्य आपको स्वयं लिखना होगा। अब इस परिस्थिति में जब हम देखते हैं तो आज ग्लोबल ऑर्डर में एक विचार आया है कि नई बदलाव की तो जरूरत है। चाहे हम बात करें किस प्रकार से भारत के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन की, या जिस तरह आज बात करी जा रही है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल गवर्नेंस में जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, वो जो मापदंड है पश्चिमी, क्या वो सबके लिए पर्याप्त है, उसके ऊपर विचार मंथन चल रहा है। अब आज इसी वैश्विक विश्व में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शक्ति और राष्ट्रीय हित बहुआयामीय है। निसंदेह राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है अंतरराष्ट्रीय संबंध का। स्टेट इज इंडीड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, बट एट द सेम टाइम we cannot ignore the big corporations, we cannot ignore the role of human resources, the soft power। और इस परिस्थिति में आज आप और मैं, क्योंकि जैसे उमेश जी ने शुरुआत करी कि आज पूरी मीडिया एक मोबाइल में सीमित हो गई है, उसी प्रकार आज सब कहीं ना कहीं ज्ञान की जो धारा है वो भी तो एक डिजिटल दुनिया के अंतर्गत आ गई है। आज our lives to livelihoods are defined by the digital world। So in this current age of fourth industrial revolution, जब चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है, तो वर्चस्व वो होगा जो इस तकनीक के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। Those who will be able to carve out a niche for themselves in this world of rapid technological advancement। Rapid technological advancement केवल एक किताबी शब्द नहीं है, क्योंकि जब हम आज सवेरे उठते हैं तुरंत हमसे मोबाइल कहता है क्या आप अपने ये प्राइवेसी अलाउ करते हैं, और हम कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि जीवन हमारा तीव्र हो रहा है और इस तीव्रता के साथ चलने कहीं ना कहीं चलते चलते बहुत सारे बदलाव में हम कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हैं। और इस बदलाव में आगे की जो कड़ी है, जहां अगेन आप सब लोग इंपॉर्टेंट हैं, वर्चस्व का जो आज ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो देश विकसित होने वाला है जो सबसे ज्यादा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पर होने वाला है। कंट्रीज दैट आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन द नॉलेज रेवोल्यूशन, ऑन द नॉलेज सोसाइटी आर द कंट्रीज दैट वी कॉलिंग द शॉट। और इसी संदर्भ में उमेश जी, क्योंकि आप और मैं और जो हमारे सभी स्टूडेंट्स जब एक कक्षा में जाते हैं, हम केवल एक क्लास में नहीं जा रहे, हम राष्ट्र निर्माण की भूमिका में जा रहे हैं। So teaching and education is a bigger framework of nation building. Therefore, I'm
एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैं सदा आशावादी हूँ और इस विषय में मैं कहीं ना कहीं मेरी जो आशा का पैमाना है वो और बढ़ जाता है कि निस्संदेह वैश्विक पटल पे भारत एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या चौथी औद्योगिक क्रांति हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का विषय हो या मानव सुरक्षा की बात हो। हर विषय पर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था सहित भारत निस्संदेह एक सही पथ पर अपनी पूरी आम जन को आगे लेकर जाएगा और यही धरोहर है हमारी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आगे की बातें अन्य सत्र में हो जाएंगी। शुरुआती दौर में मेरा केवल यही कहना है, यस इंडीड वी हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड, बट द फ्यूचर लाइज विद यू ऑल, बट द फ्यूचर लाइज विद द पीपल हु सल्यूट द आइडिया ऑफ एजुकेशन, एज महात्मा गांधी जी राइटली सेड, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। इन्हीं बातों के साथ प्रथम सेशन में यही समाप्ति। उमेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर रामना। अब आदरणीय भाला जी से प्रश्न है, विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण की क्या भूमिका होगी? मैं एक बार पुनः ऑडियंस को बता दूं कि विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक, सोशल, कल्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक मूल्यों की क्या भूमिका होगी आगे भविष्य में? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो 3 बातें आपने बताई, एक बार फिर से जरा दोहरा दे तो ठीक रहेगा। 3 बातें जो बताई आपने, सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक। तो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है 2047, अर्थात 22 वर्ष अपने हाथ में है। इन 22 वर्षों में हमें क्या करना है सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक क्षेत्र में, इस पर हम विचार करें तो सबसे पहली आवश्यकता है कि हमें इस समाज को जानना होगा, किस समाज के लिए हम काम करने जा रहे हैं। तो भारत का समाज वो समाज है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को परिवार मानता है। कुछ देश ऐसे हैं जो कहते हैं कि विश्व तो एक बाजार है, कुछ चिंतन ऐसा है जो कहते हैं कि विश्व एक भोग की वस्तु है, उसका हमें उपभोग करना है। लेकिन दोनों बातों से हटकर भारत ये कहता है कि विश्व एक परिवार है और परिवार में जिस प्रकार से आपस में सौहार्द होता है, तो उस प्रकार से पूरी दुनिया में पारिवारिक वातावरण रहे और हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर मानवता की रक्षा के लिए आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यक है अपने सांस्कृतिक मूल्यों को ठीक रखना। सांस्कृतिक मूल्यों का आधार होता है धर्म, और धर्म की कई प्रकार की गलत व्याख्याएं प्रचलित है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में अगर मैं कहूं तो धर्म की व्याख्या है प्रकृति प्रदत्त कर्म ही धर्म है। प्रकृति ने एक बीज बनाया है, बीज का धर्म है कि वो पेड़ बने, पौधा बने, पेड़ बने, फिर फल दे। प्रकृति ने एक पशु बनाया है, उस पशु का जो धर्म है वो निभा रहा है। प्रकृति ने हमें मनुष्य बनाया है, मनुष्य के नाते हमें जो धर्म निभाना है उसमें जब तक हम बालक हैं बालक धर्म निभाना है, पुत्र धर्म निभा रहे हैं, पिता बने तो पिता धर्म निभाने लगेंगे, फिर कहीं राजा बने तो राज धर्म निभाएंगे, प्रजा है ही तो प्रजा धर्म निभाएंगे। तो धर्म इतना व्यापक है, लेकिन धर्म को रिलीजन के साथ जोड़ दिया गया है। उसका अनुवाद संविधान में भी गलत किया गया है, रिलीजन को ही धर्म कहा गया है, जबकि रिलीजन अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। और अभी जो घटना घटी है जिसके बारे में हम कहते हैं कि धर्म पूछ कर मारा गया, धर्म पूछ कर नहीं मारा गया, भले वो धर्म पूछा है उन्होंने, लेकिन धर्म नहीं, उन्होंने संप्रदाय पूछा है, उन्होंने मजहब पूछा है। अगर वो मजहब इस्लाम मजहब का है तो उसको नहीं मारेंगे, इस्लाम मजहब से हटकर कुछ है तो उसको मारना है। तो ये जो एक विकृत धारणा है, धर्म और पंथ, धर्म और संप्रदाय, धर्म और मजहब, इसको न समझकर और हम
वसुधैव कुटुंबकम की जो कल्पना करते हैं उसको समझ नहीं पाएंगे। और इसलिए मैं यही कहूँगा कि जितने भी पंथ हैं दुनिया में, उन सब पंथों को एक मंच देना, यही हमारा धर्म है और यही भारत का धर्म है। भारत सब पंथों को एक मंच पर लाकर जतो मत ततो पथ बंगला में कहा गया है, जितने मत है उतने पथ है। तो इस प्रकार से सब मतों का, सब पंथों का समादर करते हुए, आदर करते हुए, उनके साथ चलने का जो स्वभाव है, जो मानस है, वो भारत का है। और इसके लिए संवैधानिक स्थिति क्या है, तो पहले तो हमें जानना होगा कि संविधान हमारे हाथ आया कैसे। तो सबसे पहले तो भारत शासन अधिनियम 1935 बना। अंग्रेज यहाँ रहकर अपने ऊपर राज करना चाहते थे। 1773 से लेकर 1919 तक जितने भी कानून इंग्लैंड से बनकर आए थे, उन कानूनों के पुलिंदे के सहारे उन्होंने अपना भारत पर शासन करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 ये बनाया और राज करना शुरू किया। अंतरिम सरकारें बनने लगी। उसी समय 4 वर्ष बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और उस विश्व युद्ध में इंग्लैंड इतना उलझता गया कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। तब उन्होंने तय किया 1946 में युद्ध समाप्त होते ही कि अब सब देशों को छोड़ो और अपने देश को संभालो। भारत को भी छोड़ना था। 20 जून 1948 ये भारत छोड़ने का दिन उन्होंने घोषित कर दिया, यहाँ पत्र भी भेज दिया। लेकिन इस बीच लॉर्ड माउंटबेटन आ टपके और उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक हम भारत को क्यों ढोना चाहते हैं, उससे पहले ही भारत को छोड़ देते। कब छोड़ना है, तो उन्होंने कहा 15 अगस्त। क्यों भाई 15 अगस्त क्यों? तो कहा गया कि 15 अगस्त 1945 को मैंने जापान का सरेंडर करवाया था, मेरे लिए शुभ दिन है। उसी दिन मैं भारत का 2 वर्ष बाद 1947 में विभाजन कर दूंगा। एक मजेदार बात को बता दूं आपको मैं इस बीच, अचानक मेरे पास गृह मंत्रालय से फोन आया कुछ दिनों पहले और उन्होंने कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दोनों क्या मुहूर्त देखकर तय की हुई तिथियां हैं या क्या है? तो 15 अगस्त की तो तिथि मैंने बता दी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने तय किया है कि 15 अगस्त 1947 को देश स्वाधीन कर देंगे, हम भारतीयों के हाथों छोड़ दे देंगे और हम चले जाएंगे। 26 जनवरी कैसे आया? तो 1939 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का और उन दिनों कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया कि अब हम संपूर्ण स्वतंत्रता इसकी मांग करेंगे। फिर प्रश्न उठा कि ये संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है, इसके बारे में पूरे देश को जागरूक करना है या उनको बताना है, तो क्या किया जाए? तो ये तय हुआ कि अगले महीने का अंतिम रविवार जो है वो पूरे देश में मनाया जाएगा स्वाधीनता दिवस के नाते, और उसी दिन से फिर हम स्वाधीनता की अलग जगाएंगे। तो अगले महीने का अंतिम रविवार अर्थात 1930 के जनवरी का अंतिम रविवार वो था 26 जनवरी। इस तरह से 26 जनवरी आया। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी इन दोनों के बीच 2.5 वर्ष का जो गैप है वो क्यों हुआ? क्योंकि 47 में हम देश स्वाधीन हुए और तब तक संविधान बन नहीं पाया था और इसलिए उसके 15 दिन बाद संविधान की प्रारूप समिति बनाई गई। उस प्रारूप समिति ने पूरे 141 बार बैठकर संविधान बनाया। उस संविधान को फिर जब सबके सामने चर्चा के लिए रखा गया तो उसको फिर 26 नवंबर 1949 में स्वीकार किया गया। लेकिन क्रियान्वित करने का समय वो 26 जनवरी तय था, इसलिए 2 महीने का इंतजार किया गया और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 ये हमारा पहला गणतंत्र दिवस इस रूप में हमने मनाया। तो इन दोनों तिथियों के बीच जो 2.5 वर्ष के करीब कार्यकाल है उसका भी हमें विचार करना होगा। 1947 के बाद 1950 तक भी हमें सोचना पड़ेगा। तो इन 22 या 25 वर्षों में हमें क्या करना है, इस पर हम विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा सबसे पहली आवश्यकता संवैधानिक दृष्टि से। संविधान इतना जटिल है क्योंकि कानूनी भाषा में लिखा गया है, कानूनों का पुलिंदा जो था उसी के सहारे लिखा गया है। इसलिए सबसे पहले मेरी तो मांग ये है सरकार से भी, और ये सरकार तक बात पहुँचे, इसलिए जो भी करना हो वो जनता करे, वो ये है कि संविधान का सरलीकरण होना चाहिए। उसका पुनर्लेखन इस प्रकार से हो कि आम आदमी उसको समझ सके, क्योंकि संविधान के सहारे ही हमें देश को आगे बढ़ाना है। कोई न कोई एक ग्रंथ चाहिए जिसके सहारे हम आगे बढ़े, तो वह केवल संविधान ही हो सकता है। और इसलिए संविधान के सहारे में अगर आगे बढ़ना है हमें, तो संविधान हमें पल्ले पड़े, हमारे गले उतरे
इस प्रकार की भाषा में होना चाहिए। तो इसलिए इसका सरलीकरण होना जरूरी है, ये पहली बात है। सरलीकरण होगा तो फिर उसमें उसका पुनर्लेखन होना जरूरी है, और इसलिए पुनर्लेखन का काम कौन करेगा, क्या करेगा, कितना समय लगेगा, ये सरकार का विषय है। लेकिन हमारा आग्रह यह है कि सरकार इसे अविलंब हाथ में ले और इस काम को आगे बढ़ाए। इसमें नंदलाल बोस के अंकित चित्र जो है वो उनके लिए मददगार बन सकते हैं, क्योंकि चित्रों के माध्यम से उन्होंने बड़े सरल भाव से संविधान का जो भाव है वो समझा दिया है। जैसे आज की बात मैं अगर कहूँ कि भाग 15 में चुनाव ये विषय है, चुनाव कैसे होगा, क्या होगा, ये संविधान में लिखा है। लेकिन संविधान ये लिख नहीं सकता कि आपका नेता कैसे होगा, नेता कैसा होगा ये हमें तय करना है, हर नागरिक को तय करना है। नंदलाल बोस ने उसका संकेत दे दिया है कि अब आपको नेता चुनना है, एक नेशन एक चुनाव, ये इस स्थिति में अगर हम आ जाए तो उस समय नेता चुनना और भी आसान होगा। तो हमें अगर नेता चुनना है तो कैसा हो, तो वो पराक्रमी हो, त्यागी हो। पराक्रम का प्रतीक है छत्रपति शिवाजी, त्याग का प्रतीक है गुरु गोविंद सिंह। तो इस प्रकार से उन दो चित्रों का अंकलन करके और नंदलाल बोस ने समझा दिया है कि निर्वाचन की जो भी गतिविधि है वो तो ठीक ही है, लेकिन उसमें से जो परिणाम आना है वो परिणाम ये होना चाहिए कि इस प्रकार का नेतृत्व हमारे सामने उभर कर आए। तो इस प्रकार की जब बातें हमारे सामने आएगी तो निश्चित रूप से हम इस संविधान के जो 3 आधार स्तंभ है उन 3 आधार स्तंभों के बारे में भी सजग हो जाएंगे। पहला आधार स्तंभ है कार्यपालिका अर्थात ब्यूरोक्रेसी, दूसरा आधार है जो चुनकर जाते हैं विधायिका, हमारे जननेता, और तीसरा है हमारी न्याय व्यवस्था। आज हम देख रहे हैं कि तीनों में तालमेल नहीं बैठ रहा है। न्याय व्यवस्था कुछ कह रही है, शासन कुछ कहने जा रहा है और जनता कुछ और चाहती है। तो इसलिए इन तीनों का तालमेल बैठे, इस प्रकार का नेतृत्व के ध्यान में ही रहे, इस प्रकार का उनका आचरण, ये जब होगा तो इन तीनों स्तंभों के सहारे संविधान की हम सही ढंग से रक्षा कर पाएंगे। दुर्भाग्य से स्तंभों की संख्या बढ़ाने की एक कंपटीशन शुरू हो गई, और मैं अपने विवेक जी से क्षमा याचना करते हुए कहूंगा कि मीडिया को चौथा खंबा बनाना ये मीडिया के लिए सबसे घातक रहा है। मीडिया को ये करना चाहिए जो नारद मुनि किया करते थे कि इन 3 स्तंभों का सब ठीक है कि नहीं, इसको देखना, उस पर ध्यान रखना। तीनों स्तंभ ये ठीक है, अपना धर्म निभा रहे हैं कि नहीं, उनका अपना धर्म निभाने के लिए बार बार उनको याद दिलाना, उनके धर्म की याद दिलाना, और इस प्रकार से देश का संचालन सही ढंग से चलता रहे, इसकी जिम्मेवारी ये मीडिया की जिम्मेवारी है। लेकिन मीडिया जब से अपने आप को चौथा खंभ करने लगा, चौथा स्तंभ करने लगा, तो स्तंभों की संख्या बढ़ाने की कंपटीशन शुरू हो गई, और कुछ साहित्यकारों ने ये कहना शुरू किया कि अगर अच्छा साहित्य नहीं होगा तो संविधान की रचना या लोकतंत्र की रक्षा कैसे हो पाएगी। इसलिए 5वां स्तंभ वो क्या है, तो साहित्य है। फिर अगर कहे, सेना कहे कि हम छठे खंभ है, हमारे बिना तुम कैसे लोकतंत्र की रक्षा कर लेते हो, देख लेते हैं, तो ये तो बहुत घातक होगा। और इसलिए खंभों की संख्या 3 ही है, उन तीनों खंभों की तरफ नजर रखने का काम, उसकी रक्षा का काम, उसकी सुरक्षा का काम वो 3 लोगों पर है, 3 विधाओं पर है, जिसमें सबसे पहली विधा है शस्त्र, दूसरी विधा है शास्त्र, और तीसरी विधा है धर्म। शस्त्र है सेना के हाथ, शास्त्र है शिक्षा व्यवस्था के हाथ, और धर्म है नारद के हाथ अर्थात मीडिया के हाथ। तो मीडिया अपना वो धर्म निभाए तो निश्चित रूप से इस देश में जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश का भ्रमण करने के बाद दक्षिण में जाकर जब समुद्र लांघ कर और एक टीले पर बैठे और उन्होंने भारत की तरफ देखना शुरू किया, तो भारत माता का वो चित्र उनकी आंखों के सामने उभर कर आया कि भारत फिर से एक बार पूरे विश्व की सत्ता को, अर्थात आर्थिक सत्ता या शस्त्रों की सत्ता नहीं, सांस्कृतिक सत्ता, उसका नेतृत्व कर रहा है, अर्थात गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित है।
तो उस भारत को अगर हमें निर्माण करना है तो उस भारत को निर्माण करने के लिए अगले 25 वर्षों की अपनी जिम्मेवारी क्या है उसको समझते हुए जब हम काम करेंगे तो संविधान, सांस्कृतिक चिंतन और सामाजिक चिंतन, इन तीनों के बारे में हमारी धारणाएं स्पष्ट होती रहेगी। इन धारणाओं का स्पष्ट होना ये बहुत जरूरी है और यही काम मीडिया के माध्यम से होता है। तो इसलिए मीडिया अपना धर्म निभाए तो मैं समझता हूँ कि जो चिंतन हम कर रहे हैं कि भारत, विकसित भारत 2047, वो निश्चित रूप से हम अपनी आंखों के सामने देख कर जाएंगे। धन्यवाद। बालाजी, अपने विशद ज्ञान से सरलीकरण करते हुए आपने तीनों ही तत्वों से हमें परिचित कराया कि सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण कितना आवश्यक है विकसित भारत के संदर्भ में। और मीडिया की ओर बार बार आपने इशारा किया, तो अगला सवाल मैं मीडिया की ओर से हमारे प्रतिनिधि विवेक जी से कर रहा हूँ कि आज के दौर में जब तेजी के साथ भारत डिजिटल होता जा रहा है, नैतिक पत्रकारिता की कितनी बड़ी चुनौती है? विवेक जी। मैं बहुत शॉर्ट रखूंगा क्योंकि वक्त का थोड़ा अभाव है, मैं कब से कह रहा हूँ। तो ये है कि बहुत बड़ी चुनौती है और अगर आने वाले दिनों में चाहे विकसित भारत करना हो या फिर अच्छा आपको एक स्वस्थ मीडिया चाहिए, अच्छे राजनेता चाहिए, उसमें ये वर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं नैतिकता, मोरालिटी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसी का पतन होता जा रहा है। आप देखेंगे एक समस्या मुझे इसमें शिक्षण संस्थानों से भी है। मैं अपने वाले शिक्षण संस्थानों से नहीं कह सकता क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं पढ़ाई करता था, उसमें एक अलग से किताब चला करती थी मोरल साइंस की। उसमें कहानियाँ होती थी और उसमें आखिर में होता था कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। अब लोगों में कम होती जा रही है मोरालिटी। ये बहुत बड़ा खतरा है आने वाले समाज के लिए। और वो समाज में, जैसे कि अपने मैं पहले बोल रहा था कि इसी में से जो हम, जैसा कह रही थी मैम कि हम राष्ट्र निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, जैसा कि बता रहे थे सर, तो उसी तरीके से जब हम राष्ट्र निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, जिनको हम ईंट बना रहे हैं उसमें कम है उस सीमेंट की जिसका नाम है नैतिकता, और वो बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में इसको रखना होगा बचा के। अगर हम रख पाते हैं बचा के, तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। ये हम पर, आप पर डिपेंड करता है। धन्यवाद विवेक। अगला और संभवतः ये इस पैनल का आखिरी सवाल होगा कि एआई, ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसी के इस दौर में भारत को आर्थिक रूप में विश्व में आप किस प्रकार से देखते हैं? आमने जी। जी हाँ, पूरा पहली वाली कड़ी के विचार को आगे बढ़ाते हुए निस्संदेह अब विश्व में करेंसी का आयाम बदल गया है। अब इस बदलती हुई परिस्थिति में एआई, ब्लॉकचेन केवल किताबी शब्द नहीं है, ये हर घर, हर जन की एक आवाज़ है। इसके साथ अपने आप को सम्मिलित करना अनिवार्य है, बिकॉज प्रोग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेस, जिसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, प्रोग्रेस कैन नॉट हैपन विदाउट चेंज। तो इस बदलती हुई दुनिया में हमें अपने आप को समाना है एंड लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। केवल जैसे विवेक जी हैं, उनको सब रोज सुबह उठकर न्यूज से, बदलते हुए विषय से अपने आप को परिचित कराना होता है। उसी प्रकार से एक शिक्षक के रूप में मेरे शोध को, मेरे काम को, मेरी किताब को बदलती हुई दुनिया के साथ मुझे जोड़ना होगा। सो इम्पोर्टेंट टू बी इनोवेटिव, चाहे आप इतिहास के छात्र हो या सोशियोलॉजी के छात्र हो या आप मीडिया कर पढ़ रहे हो या विधि पढ़ रहे हो। आज हर आयाम नई इस परिस्थिति में एक नया एस्पेक्ट में है इनोवेशन। और इनोवेशन इसी कारण क्योंकि आज इंटरडिसिप्लिनरिटी का समय है, बहुआयामीय, बहु अध्ययन होना बहुत जरूरी है। तो इसी संदर्भ में एआई, ब्लॉकचेन तकनीक सदा मानव समाज का भाग रही है और आगे भी जाकर तकनीकें आएंगी और हम सब इसका एक इम्पोर्टेंट भाग होंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर, टेक्नोलॉजी इज फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस आर नॉट फॉर टेक्नोलॉजी। सदा मानव जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित रहेगा। तो आज हम 5G, 6G की ओर निसंदेह बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। चैट जीपीटी के बजाय क्या पता नया और कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन
वो सदा मानव केंद्रित है, और मानव केंद्रित इसलिए है क्योंकि हमें सदा वो एक विचार है ना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। उमेश जी, यही हमारी शिक्षा नीति का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। टुडे यू एंड आई इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन विच इज जस्ट नॉट अबाउट क्लासरूम्स, वहाँ एजुकेशन आज ऑर्गेनाइजेशन में है, एमएनसीज में है, राजनीति में, सब जगह जीवन ही शिक्षा है। तो जीवन के हर आयाम में हमें क्रिएटिव, इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हैं तो फासला क्या है। सो बी क्रिएटिव, बी इनोवेटिव, दैट्स द मंत्र, बिकॉज वी आर इन द डिजिटल एज। धन्यवाद वंस अगेन उमेश जी। थैंक यू डॉक्टर आमना। और पैनल के आखिरी दौर में हम आ चुके हैं, जहां अब हमें जो डिस्कशन के परिणाम मिले हैं वो ये हैं कि जैसा कि बालाजी ने बताया आपने कि प्रकृति प्रदत्त कर्म ही धर्म है। धर्म के जो हमारे संशय थे मन में आपने दूर किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जतो मत ततो पत की बात भी आपने की, और भारतीय कानून व्यवस्था को 1773 से 1919 तक के कानून को भी आपने बताया, और आज परिमार्जन की आवश्यकता है उसमें। मीडिया की नैतिकता की बात भी आई, और विवेक ने हमें बताया कि नैतिकता की शुरुआत हमारे घरों से होती है, और मोरल साइंस को हम किताब बना के भूलते जा रहे हैं। जो अप्लाइड एस्पेक्ट की चीज़ है वो जीवन में होनी बहुत ज़रूरी है, और संविधान का सरलीकरण आपने बताया बहुत ज़रूरी है, और नेतृत्व शास्त्र और धर्म की बात आपने की, जो अपने आप में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इस पूरे पैनल डिस्कशन के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे आज के पैनलिस्ट का, श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्री विवेक श्रीवास्तव जी और डॉक्टर आमना मिर्ज़ा। और इसी के साथ मैं आज के इस चौथे पैनलिस्ट यानी आज की ऑडियंस, आज के स्टूडेंट्स के लिए मैं आखिरी संदेश के साथ आज के इस पैनल डिस्कशन को विराम देना चाहूँगा कि शब्द का संबल समय की धार देखो। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस माय डियर स्टूडेंट्स। शब्द का संबल समय की धार देखो और अपने हाथ की पतवार देखो। नाव टूटी हो भले हिम्मत न टूटे, देखना है तो नदी के पार देखो, देखना है तो नदी के पार। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।